Assalamu alaikum. Dear students, today we will talk about the database security. It is one of the topics in our course outline of information security. And I am talking to you as your teacher, your instructor, Professor Muhammad Sajjad. And this is BSIT 4th semester class in Concordia College, Sahiwal. Database is also a software which needs to be protected because our precious data, our valuable data is stored in the database. So database is more important than any other software in our computer because it has the data, and data is more precious than anything else in our computer system. जी, तो डेटाबेस सिक्योरिटी जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डाटा हमारा, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। ओके, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डेटाबेस के जो आपको पहले से ही पता हैं, उनके ऊपर जस्ट गो थ्रू करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से होंगे हमारे आज की क्लास में। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और SQL सिक्योरिटी मॉडल है, SQL सिक्योरिटी मॉडल। ओके, देन data sensitivity, security versus precision, inference versus aggregation problem, और multi-level databases, और फिर future directions क्या होंगी। ये चीज़ें करने का प्रोग्राम है आज का। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें डेटाबेसेस के हवाले से देखते हैं, और वो हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। A database is a collection of data or a set of rules that organize the data. Users work with the logical representation of the data. ये चीज़ें आपको मैं दोबारा यानी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, देन रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं जिसमें रिलेशंस के अंदर डाटा सेव होता है और इन रिलेशंस को आपस में एसोसिएट कर देते हैं। रिलेशन से मेरी मुराद टेबल्स हैं जहाँ पे डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है। Database management system DBMS is a software that creates and manages, maintains and controls the database and the activities on that database. इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए database management systems होते हैं। और फिर DBA, database administrator, is a person who sets the organization of an access rule to the database. ये आपके database को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ये इस पर्सनल की जिम्मेदारी है, database administrator की। ये एक पर्सन होता है, इसके ऊपर आपने जब डेटाबेस पढ़ रहे थे तो उस वक्त बात कर ली होगी। फिर आगे कुछ चीजें और हैं, जैसे कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अदर रिलेशन। एक टेबल और दूसरी, और टेबल के अलावा जो चीजें होती हैं आपके डेटाबेस के अंदर, उन टेबल्स की आपस में रिलेशनशिप कैसी होती हैं, इसके ऊपर देखें। एक होता है हमारे पास बेस टेबल, और बेस टेबल इज योर नॉर्मल टेबल, जो आपका टेबल जो फिजिकली हार्ड डिस्क पे जाके सेव होते हैं वो आपका बेस टेबल होता है। So base table is your real table that is stored on your hard disk. Real table. Table is also known as a relation. So another thing is view. View is a arbitrary, as a virtual table. It's an imaginary table that is created temporarily just to show a view to the user, and then after the view is used, the view is destroyed. So view is a virtual table that is created temporarily in a memory,
whenever certain requirements came, you can create a view, and then views are destroyed from the memory after usage. And a snapshot is like a view, but it is a named derived relations, but they do not have, but they do have a stored data. इसमें data store कर सकते हैं snapshot में. So snapshot is a particular is a picture of a particular database at a particular time. किसी खास वक्त किसी खास डेट के ऊपर किसी डेटाबेस की क्या स्टेट थी और उसकी क्या सिचुएशन थी या उसमें किस तरह का डेटा था उसकी कॉपी ले लेते हैं, ये समझ लें. दैट इज कॉल्ड स्नैपशॉट. देन क्यूरी रिजल्ट रेज हैंड. ओके, एक मिनट जी, मैं जरा एक ब्रेक आ गई थी दरमियान में. चले फिर दोबारा शुरू करते हैं. तो बात हो रही थी क्यूरी रिजल्ट्स की. Query results are also the results that are generated from existing tables or existing views, existing snapshots or existing base relations. Okay, next is some other concepts of database as a primary key. Primary key is an attribute or a set of attribute that uniquely identifies your record in a file. फाइल के अंदर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं. ओके, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है. स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की 3 तरह की कमांड्स होती हैं. द टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, वी कैन डिवाइड एसक्यूएल कमांड्स इनटू 3 टाइप्स. द डाटा डिक्शनरी लैंग्वेज, डीडीएल, इसको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कई दफा लोग कह देते हैं. तो इट इज अ डाटा डिक्शनरी लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो आपको अच्छा लगे. सो इसमें डिफाइन, मेंटेन, ड्रॉप, स्कीमा, ऑब्जेक्ट्स, ये काम होते हैं. यानी हम इसमें कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. इस तरह की चीजें क्रिएट करने के लिए डेफिनेशन लैंग्वेज होती है या डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है, यानी या डिक्शनरी लैंग्वेज इसके लिए यूज होती है. वो टेबल क्रिएट करना है, वो फाइल क्रिएट करनी है, फाइल डिलीट करनी है, टेबल डिलीट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है. रिकॉर्ड के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस तरह के, सॉरी टेबल्स के ऊपर या फाइल्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं. देन डेटा मैनिपुलेशन मीन्स कि आप अपने डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशंस करना चाहते हैं. ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, इस तरह की कोई अगर ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं तो वो ऑपरेशंस जो है वो हमारे एसक्यूएल की जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, डीएमएल बोलते हैं उसको, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. देन डीसीएल है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. इसके बारे में शायद आपने ना पढ़ा हो, मैं आपको बता रहा हूँ. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम करते ये हैं कि एक्सेस ग्रांट करनी है, तो ये इट्स ऑल अबाउट डेटाबेस सिक्योरिटी, इज ऑल अबाउट डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में हमारी डेटाबेस की सिक्योरिटी जो हम कर सकते हैं एसक्यूएल की, वो डीसीएल में कर सकते हैं. डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. ये इसमें सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं. इसमें किसी को एक्सेस देनी है, किसी की एक्सेस को रिवोक करना है. रिवोक का मतलब वो खत्म करना है. और कमिट, कोई अगर आपने रोल बैक करनी है, कोई कमिट करनी है. कमिट ये होती है कि कोई ट्रांजैक्शन आपने करनी है, वो होता है कमिट, या डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसको कमिट बोलते हैं. रोल बैक का मतलब होता है कि कोई ट्रांजैक्शन को आपने खत्म करना है, दैट इज कॉल्ड रोल बैक. तो ये इस तरह की जो कमांड्स हैं, कंट्रोल कमांड्स, सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एसक्यूएल के अंदर बिल्ट इन है. एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए, फिजिकल डेटाबेस इंटेग्रिटी है. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस सिक्योरिटी, physical database integrity. Second requirement is logical database integrity. Third requirement is element integrity. Fourth one is auditability. Fifth one is access control. And the seventh one is user authentication. And the eighth one is availability. So ये 8 requirements हैं, security requirements इनको हम कह सकते हैं. ये हमारी डेटाबेस की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे डेटाबेस की अंदर फिजिकल डेटाबेस इंटेग्रिटी मेंटेन हो, लॉजिकल डेटाबेस इंटेग्रिटी हो, एंड सो ऑन.
तो पहले हम देखेंगे फिजिकल डेटाबेस सिक्योरिटी। तो फिजिकल database integrity, physical database integrity, immunity to physical catastrophe such as power failures, media failures। यानी आपकी अगर कोई फिजिकल नुकसान होता है, वो फिजिकल बर्बादी होती है, कोई फिजिकल तबाही होती है, कैटास्ट्रॉफीज कहते हैं तबाही बर्बादी को। तो अगर कोई इस तरह की चीज हो जाती है, कोई हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, कोई बिजली चली जाती है, उससे कोई मीडिया फेलियर हो जाता है। मीडिया का मतलब हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, एसएसडी, ये सब जितने भी मीडिया हैं वो फेल हो जाता है। तो फिजिकली सिक्योरिंग दी हार्डवेयर, यूपीएस भी लगा सकते हैं। यूपीएस को सिक्योर करना, फिर आपने अपनी हार्डवेयर को सिक्योर करना, ये आपकी फिजिकल डेटाबेस इंटीग्रिटी में आते हैं। तो रेगुलर बैकअप्स लेते रहें। तो रेगुलर बैकअप रहेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क के अगर इशू आते भी हैं तो उन हार्ड डिस्क के इश्यूज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द हार्ड डिस्क, वी कैन रिड्यूस द risk of data loss in case of hardware failure by taking regular backups। रेगुलर बैकअप्स लेने के बाद आप अपने डाटा लॉस के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि डाटा लॉस होगा ही नहीं अगर आपका रेगुलर बैकअप लेते रहेंगे, लेकिन रेगुलर बैकअप लेने से ये होगा कि आपका डाटा का नुकसान कम होगा। वो कैसे कम होगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 दिसंबर को बैकअप लिया है और 17 दिसंबर को आपकी बिजली चली गई और उसकी वजह से हार्ड डिस्क फेल हुई, तो 15 दिसंबर तक जो डाटा था उसको रिकवर कर सकते हैं। अगला बैकअप आपने 30 दिसंबर को रखा हुआ था, तो 15 दिसंबर को जो बैकअप लिया, उसके बाद फर्ज कर लें आपका 25 दिसंबर को हार्ड डिस्क फेल होती है, तो 15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के दरमियान होने वाले जो डाटा के रिकॉर्ड्स हैं वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप्स। बैकअप की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप रेगुलरली डेली बैकअप ले रहे हैं या रेगुलरली आप जो है वो अल्टरनेट डेज में बैकअप ले रहे हैं, या रेगुलरली आप वीकली बैकअप ले रहे हैं, या आपका रेगुलर बैकअप जो है वो फोर्टनाइटली बेसिस पे है और इट्स योर मंथली बेसिस बैकअप। तो ये हमारा डिपेंड कर रहा होता है। उतना ही नुकसान होगा जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतना ज्यादा नुकसान होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही कम नुकसान होगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फिर ये है कि डाटा बेस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसको ये है कि मोर फ्रीक्वेंट बैकअप समटाइम्स नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा की वजह से उसके रेगुलर बैकअप्स में फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम रखी जाती है। फॉर एग्जांपल आप वीकली बैकअप रख सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी जो डाटाबेस के ऊपर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी होगी। तो लॉजिकल डेटाबेस इंटीग्रिटी दूसरी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की। उसमें आते हैं रिकंस्ट्रक्शन एबिलिटी, यानी टू मेंटेन अ लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रीप्ले log to restore the system to a stable point। लॉजिकल डेटाबेस इंटीग्रिटी का मतलब ये होगा जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है और जो डाटा है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं आपकी, आपने उस सॉफ्टवेयर की को मेंटेन रखना है, सॉफ्टवेयर को वर्किंग कंडीशन में रखना है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है, कोई करप्शन होती है, कोई उसके अंदर इनसिक्योरिटी आती है, तो आप चाहेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स को लॉग किया जा सकता हो, लॉग ऑटोमेटिकली हो या लॉग किया जाए। अब आप लॉग करने का मतलब आप समझते होंगे, लॉग का मतलब ये होता है कि उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लॉग मीन्स टू रिकॉर्ड एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना, इसको बोलते हैं लॉग। So log is to keep the record of some activity so that whenever something bad happens, we can go back and check the log what had happened। For example, हमें आज हम कल आते हैं अपने डेटाबेस को देखते हैं, तो उसमें अंदर कोई इशू आया हुआ था, तो हम देखना चाहेंगे ना ये इशू किस टाइम पे आया है। हो सकता है रात को 12 बजे आया हो, तो आप उसकी लॉग चेक करेंगे, सिस्टम की डेटाबेस की लॉग चेक करेंगे, उस लॉग से पता लगेगा कि ये इशू कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी डेट में आया। ये चीज देखनी यदि है, फिर उसको रिप्ले लॉग
टू रिस्टोर द सिस्टम टू द डाटा टू द स्टेबल पॉइंट, उसको हम वहाँ पे ले जाते हैं अपने सिस्टम को रिस्टोर करके जो स्टेबल पॉइंट होता है, और ताकि हमारा सिस्टम जो है वो दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाए। तो उससे पहले डाटा का बैकअप ले लेते हैं। ये होती है लॉजिकल डेटाबेस इंटीग्रिटी। इसमें हम सॉफ्टवेयर को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कि लॉग के ज़रिए से और उसको रीप्ले के ज़रिए से किसी स्टेबल पॉइंट के ऊपर रिस्टोर कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज लॉजिकल डेटाबेस इंटीग्रिटी। अगर हम ऐसा कर सकने करने के काबिल हों तो हम ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। उसके बाद है एलिमेंट इंटीग्रिटी। So element integrity is the integrity of a specific data element. It is their correctness or accuracy. For example, field checks, access controls, change log, referential integrity, two-phase locking process. ये चीजें एलिमेंट इंटेग्रिटी हैं, या डेटाबेस के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फील्ड है डेटाबेस एलिमेंट है, एक्सेस कंट्रोल डेटाबेस एलिमेंट है, डेटाबेस लॉग जो है वो भी डेटाबेस एलिमेंट है, इंटेग्रिटी चेक्स जो होते हैं ये भी जो आपके डेटाबेस एलिमेंट्स हैं। देन तो इस तरह से जो आपका लॉकिंग प्रोसेस है, लॉकिंग प्रोसेस मैं इस पर बात करता हूँ लॉकिंग प्रोसेस थोड़ी देर में। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं फील्ड चेक्स। फील्ड चेक्स का मतलब ये है कि जो आपकी डाटा फील्ड है, जैसे रोल नंबर फील्ड है, ना रोल नंबर फील्ड इज यूज्ड टू enter the data, and it will allow some data to be entered and it will not allow some data to not to be entered। यानी रोल नंबर में आप मार्क्स नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं, अच्छा रोल नंबर फील्ड में आप नेम नहीं दे सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल सकते। तो कुछ वैल्यूज रोल नंबर फील्ड में अलाउ होती हैं, कुछ वैल्यूज रोल नंबर फील्ड में नॉट अलाउड होती हैं। वो वैल्यूज जो अलाउड हैं वो एंटर हो सकें, और जो वैल्यूज जो अलाउड नहीं है, जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज नहीं है, वो एंटर ही ना हो सकें। इस तरह की इंटेग्रिटी जो है वो हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। दिस इज कॉल्ड द फील्ड चेक्स, द फर्स्ट एलिमेंट इंटेग्रिटी। एंड एक्सेस control is another requirement in element integrity. Access control is to allow only authorized users to update the elements। आपके जितने भी एलिमेंट डाटा है, फील्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अपडेट, क्रिएट या इंसर्ट या जनरेट करने के लिए आपको ऑथराइज यूजर्स को अलाउ होनी चाहिए कि वही ये कर सकें, अदरवाइज कोई और ना कर सके। तो ये एक्सेस कंट्रोल है, ये भी हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, एलिमेंट इंटेग्रिटी के अंदर आता है। एंड चेंज लॉग, नीड टू अनडू चेंजेस मेड इन एरर। कोई अगर एरर आता है और एरर की जो इंफॉर्मेशन है वो लॉग के अंदर मेंटेन होती है, तो उन लॉग्स को चेंज लॉग के जरिए से अनडू करना, ऐसी एरोनस एंट्री, ऐसी एरोनस मॉडिफिकेशन को वापस ओरिजिनल हालत में लेके जाना, ये भी ऑथेंटिकेटेड यूजर ही कर सकते हो, अदरवाइज कोई और ना कर सकता। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज आल्सो an integrity that is the requirement of the security। and you know what is referential integrity, you have already learned about the referential integrity in your database management system course। पर अगर नहीं पता तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है कि जब when two relations are in an association, for example one relation is your parent relation and other relation is your child relation, and you have set parent and child relationship between the two relations, for example one to many relationship between primary key and foreign key, primary key in a parent relation and the foreign key in the child relation। when you have created such a relationship among between two tables, two relations, this will happen due to referential integrity। so referential integrity means every foreign key value must match with its primary key value। her foreign key value in a child relation, in every foreign key value in a child relation must match to a primary key value in a parent relation। तो अपने parent relation में हर foreign key की value child relation से मैच करनी चाहिए, अगर ना मैच करे तो ये referential integrity के अगेंस्ट जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन को मेंटेन करना ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंसर्न होते हैं।
ये भी हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में आ जाता है। फिर लॉकिंग प्रोसेस है। लॉकिंग प्रोसेस is utilized when more than one users or more than two users concurrently try to access the same data element or same relation or same data object. This is known as concurrent access, and it is controlled by locking mechanism. Locking mechanism actually works with by locking a resource to a user, and whenever a user uses a resource, it is security requirement में लॉकिंग प्रोसेस की बात मैं कर रहा था कि जब concurrent access होती है among users and all the users want to access the same object of their database, then there will be a collision or you can say the contention between the users. हर यूजर जो है उस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक यूजर उसको यूटिलाइज कर रहा है किसी रिसोर्स को या किसी ऑब्जेक्ट को, जब तक वो इस्तेमाल कर रहा है उसको दूसरे को उसकी एक्सेस नहीं देनी चाहिए। उसको आफ्टर some time it may be allowed to other users. The time is given to other users. This kind of process which locks a resource or an object to a user, particular user, is known as the locking process. तो ये भी हमारा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है होती है जी। उसके बाद हमारी ऑडिटेबिलिटी है। ऑडिटेबिलिटी है उसमें लॉग रीड और लॉग राइट टू डेटाबेस की जो एक्सेस है, कि जो लॉग रीड है और लॉग राइट है, जब भी कोई लॉग एंट्री होती है तो वो लॉग एंट्री प्रॉपरली हो, और वो लॉग एंट्री से जो डाटा को वहाँ जब भी स्टोर करना हो या रिवोक करना हो या उसको किसी प्रीवियस पॉइंट के ऊपर सेट बैक करना हो, तो उस वक्त लॉग एंट्री यूज करते हैं, चेंज लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीज़ें प्रॉपरली हो रही हों, इसको बोलते हैं ऑडिटेबिलिटी, और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो, दैट इज आल्सो अ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। और एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो क्या है, अब इसके ऊपर आते हैं। एक्सेस कंट्रोल सिमिलर टू ओएस, ओएस का भी एक्सेस कंट्रोल होता है। इसके access control means logical separation by user access privileges, allowing access to companies sensitive data only to those people, database users, who are allowed to access such data, and to restrict access to unauthorized persons. उन लोगों को डाटा की एक्सेस देना, उन लोगों को रिसोर्सेज की एक्सेस देना जो ऑथराइज यूजर्स हैं, ऑथराइज डेटाबेस यूजर्स हैं, और जो अनऑथराइज डेटाबेस यूजर्स हैं उनको एक्सेस ना देना, ये हमारी एक्सेस कंट्रोल रिक्वायरमेंट होती है। मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ओएस ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डीडीबी डेटाबेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, इनकी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है एक्सेस कंट्रोल की, वो थोड़ी ज़्यादा है। इसके अंदर डाटा होता है, इसलिए यूज़र ऑथेंटिकेशन है। यूज़र ऑथेंटिकेशन में भी सेपरेट फ्रॉम ओएस, ओएस से के अलावा इसमें ऑथेंटिकेशन होती है। देन दो तरह के ऑथेंटिकेशन लेवल होते हैं, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की ऑथेंटिकेशन होती है, और उसके बाद फिर डेटाबेस लेवल की ऑथेंटिकेशन होती है। यहाँ आप में डबल सिक्योरिटी कर सकते हैं। पहले अगर कोई आपके सिस्टम तक आएगा, सिस्टम का यूजर नेम और पासवर्ड देके, और उसके बाद वो डेटाबेस में एक्सेस करेगा, तो डेटाबेस दोबारा उससे यूजर नेम और एक्सेस पासवर्ड मांगेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी वो हमारी डेटाबेस एक्सेस ऑथेंटिकेशन होती है। और डेटाबेस एक्सेस ऑथेंटिकेशन के जरिए से किसी भी रिसोर्सेज को और डेटाबेस को और डाटा की एक्सेस को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और डाटा की एक्सेस रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, और उनकी आइडेंटिफिकेशन को इंश्योर कर सकते हैं कि whosoever is trying to access our database is an identifiable person or an authenticated person. देन अवेलेबिलिटी ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी की, नेटवर्क सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑथेंटिकेशन, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी अगेन है। अवेलेबिलिटी मीन्स के यूजर्स, whenever users want a data, a user must be allowed to access or view
दैट डाटा, उस डाटा को एक्सेस या व्यू करने की उसको परमिशन होनी चाहिए, दैट इज अवेलेबिलिटी। और कंकरेंट यूजर्स जो होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। कंकरेंट यूजर का मतलब ये होगा कि एक से ज़्यादा यूजर्स अगर बैक वक्त किसी डेटा या रिलेशन या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहें तो उनको simultaneous एक्सेस किस तरह से दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड द लॉकिंग विच इज एंड द ग्रेन्युलैरिटी ऑफ लॉकिंग। सो लॉक, एक तो हमारी लॉकिंग है, दूसरा ग्रेन्युलैरिटी ऑफ लॉकिंग का मतलब होता है लॉकिंग कितनी डिटेल में है, लॉकिंग कितनी ज्यादा बारीकी में की हुई है आपने, और कितनी ज्यादा उसकी उसके फर्दर उसको किस तरह से डिटेल किया हुआ है लॉकिंग को। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम बेस्ड लॉकिंग है तो कितने टाइम के लिए आपने एक रिसोर्स को लॉक किया किसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए एंड सो ऑन। तो ये अगर टाइम कम है तो ग्रेन्युलैरिटी ज्यादा होगी एंड सो ऑन। देन रिलायबिलिटी इज आल्सो द इज रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी को भी अवेलेबिलिटी के साथ एसोसिएट किया जा सकता है कि आपने जब आपको डेटाबेस को एक्सेस करें तो आपको फौरी तौर पर डाटा और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके, दिस इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। अच्छा, एसक्यूएल सिक्योरिटी मॉडल। अच्छा, पहले देखना ये चाहिए कि कितनी स्लाइड्स बाकी हैं, जो बहुत सारी पड़ी हैं। चलें जी, हमारा जब टाइम ख़त्म होगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे कल इसी जगह से, ठीक है। तो हम एसक्यूएल सिक्योरिटी की जो मॉडल है उसके इसको एक दफ़ा देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे खुदा हाफिज चाहूँगा। तो SQL security model implements a DAC based on data access control. SQL security model implements a data access control based on what? Based on users, based on actions, and based on objects. तीन चीजों पे बेस करता है SQL security model. SQL security model implementation based on three things: users, actions, and objects. Users of the database, user identity check during the login process. Login process के वक्त यूजर की आइडेंटिटी चेक होती है। Then actions including select, update, delete and insert. वो जो actions perform करते हैं users, उन actions की उन एक्शंस को वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें और उनके अंदर उनको अलाउ किया जाए कि वो कौन सी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकते, किन एक्शंस की उनको एक्सेस ग्रांटेड की हुई है आपने और किन एक्शंस की उनको एक्सेस ग्रांट नहीं की हुई। तो ये एक्सेस उनकी एक्शंस हैं। दिस इज आल्सो डिफाइंड इन एसक्यूएल सिक्योरिटी मॉडल। Then objects. SQL security model also be utilized to define the objects that are accessible to the by the users. Objects, for example, tables, base relations, views and columns, attributes of the table and views, ये तमाम चीज़ें objects होती हैं और इन objects की भी आप इनको SQL statement के ज़रिए से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर्स कैन प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स दे ओन। वो यूजर्स जिनको जिन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो उनके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैंने कोई टेबल क्रिएट किया तो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो आई कैन क्रिएट माई ऑब्जेक्ट्स, तो बाय इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई ऑब्जेक्ट्स। तो यूजर्स कैन प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? When object created, a user is designated as owner of the object. हर यूजर उसका ऑनर होता है, जिस यूजर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है वो यूजर उसका ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने विंडोज के अंदर जो कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल आपने क्रिएट किया, कोई और पर्सन उस फाइल को ना ओपन कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना उसके अंदर कोई फाइल कॉपी कर सकता है। सो बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली डेटाबेस के अंदर भी होता है। डेटाबेस में जब आप कोई डेटाबेस यूजर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो वो उसका ओनर होता है and he is allowed to change its restriction, its access rights, to change its permission and etc.
मैं जरा एक कॉल ले लूं। तो ये यूजर्स के हवाले से है। एसक्यूएल सिक्योरिटी मॉडल में यूजर का भी रोल है। यूजर जो ओनर होते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के, वो खुद अपनी एक्सेस को ग्रांट कर सकते हैं, दूसरे यूजर्स को अपने ऑब्जेक्ट्स की एक्सेस वो दे सकते हैं और उनकी एक्सेस वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यूजर्स अदर देन ओनर्स हैव टू बी ग्रांटेड प्रिविलेजेस टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे यूजर्स जो ओनर नहीं होते, जिनके वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे यूजर्स के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह से वो उनको एक्सेस ग्रांट किए जा सकते हैं। ओके, अब टाइम लिमिट की वजह से हम यहाँ पे इसको रोक देते हैं। तो मैं इसकी नेक्स्ट टाइम क्लास में इससे आगे इंशाल्लाह शुरू